Good morning to all of you. Remaining student will join the class quick fast. Lecture will be started shortly. Okay, let us start the lecture. I will share the screen. Okay. Last class we have to study about the sequential circuit, comparison of the sequential circuit with combinational circuit, and the study about the basic element, basic component of sequential circuit, that is the flip flop. And the flip flop is a 1 bit memory element. There are the various types of flip flop: SR flip flop, JK flip flop, T flip flop, D flip flop, master slip, JK flip flop. Lecture starting अपन ने करी the study of the SR flip flop. Basically the SR flip flop is depend upon the working condition of the bistable multivibrator. So simply SR flip flop is analyzed or designed by using the bistable multivibrator, where the two transistors are connected into the twisted form. That means the एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट में, दूसरे का आउटपुट पहले के इनपुट. So that is the twisted form where the one of two output is connected to another one, and another one in output is connected to first one. Okay. Next, we have to study about the designing of the SR flip flop by using the NOR gate. Okay. And today we will discuss the designing of the flip flop, SR flip flop, by using the NAND gate. Okay. And basically the SR flip flop are analysis or designing by using the universal gate, है ना. Universal gate कौन कौन से होंगे? NOR gate and the NAND gate. Okay, so simply the SR flip flop is designed by using the universal gate. There are the two types of universal gate: NOR gate and the NAND gate. Okay. So in previous class, we have to study about the designing of the SR flip-flop by using the NOR gate. Today we will be study about the designing of SR flip-flop by using the NAND gate. Same approach है, same output आएंगे, same analysis करेंगे. Where the input is S and R input, output is and the Q and Q bar. The similar way we have to study about that the when the set terminal set is connected to 0, output will be 0. Okay, when set is connected to 1, output will be the 1. Okay, no change condition and indeterminate condition. अच्छा, अब इन दोनों केस में अपन देख रहे हैं कि नए एसआर फ्लिप फ्लॉप इज एनालाइज्ड बाय यूजिंग द नॉर गेट, है ना. फर्स्ट अपन ने देखा. दूसरा केस अपन ने लिया एसआर फ्लिप फ्लॉप इज डिजाइन और एनालिसिस बाय द नैंड गेट. एंड द तीसरी अप्रोच क्या रहेगी कि व्हेन वी अप्लाई द क्लॉक पल्स, है ना. क्लॉक पल्स का मीनिंग क्या है कि अगर अपन यूनिवर्सल गेट के रेस्पेक्टिव कोई एसआर फ्लिप फ्लॉप या कोई भी फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करें और व्हेन वी इंट्रोड्यूस द क्लॉक पल्स बेसिकली कैसे वर्क करेगी कि व्हेन एवर द क्लॉक पल्स इज हाई, जब तक अपन क्लॉक पल्स को हाई इनपुट नहीं देंगे, क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो सर्किट वर्क नहीं करेगा. इज इट क्लियर? So when we apply the clock pulse, then the truth table is known as the characteristics table. The important factor क्या है इसमें कि when the clock pulse is not applied, अब इसमें कहीं clock pulse अपन नहीं देख रहे हैं NAND गेट या NOR गेट के रेस्पेक्टिव, तो ये वाली जो टेबल है that is known as the truth table. Okay, when the clock pulse is applied, the table is known as the characteristics table. अब ये नीचे वाला सर्किट देखो आप. नीचे वाले सर्किट में अपन क्या देख रहे हैं? सेम वही अपन ने NAND गेट लिए, अपन ने NAND गेट के रेस्पेक्टिव डिजाइन करा. इनपुट अपन ने S लिया, R लिया, आउटपुट Q और Q बार लिया. ठीक है, और ये यहाँ क्लॉक पल्स अपन ने अप्लाई करी. ठीक है, सो व्हेन द क्लॉक पल्स इज अप्लाई, देन द आउटपुट इज डिफाइंड बाय द दिस वन टेबल, एंड दिस वन टेबल इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल. ठीक है, इस टेबल में दैट टेबल इज नोन एज द ट्रूथ टेबल and this one table is known as the characteristic table. Characteristic table में अपन क्या ले रहे हैं? When we introduce the clock pulse ऐसे अप्लाई करेंगे
तो आउटपुट के रेस्पेक्टिव जो टेबल अपन डिजाइन करेंगे दैट इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इस पर क्वेश्चन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल पे। ओके, so simply the clock pulse is applied at the input, okay, output is taken as the q and q bar। नैंड टेबल के अपन नैंड जो गेट बनाए हुआ अगर उसका अपन ऑब्जर्वेशन करें तो वो कैसे आएगा कि नैंड गेट के अगर दोनों जैसे दोनों पे 0 0 आउटपुट इज 1, 0 1 है तो आउटपुट 1, 1 0 है तो आउटपुट 1 है, दोनों पे 1 1 है तो उस केस में 0। तो इसकी जो स्पेशलिटी क्या है नैंड गेट की कि व्हेन द बोथ द इनपुट आर कनेक्टेड टू हाई, बोथ टर्मिनल बोथ इनपुट पे क्या 1 1 है, उस केस में आउटपुट क्या आएगा 0, अदरवाइज क्या रहेगा 1। इज इट क्लियर? अगर दोनों इनपुट पे अपन 1 1 दें उस केस में क्या आएगा, ये आउटपुट क्या आएगा 0, अदरवाइज क्या रहेगा 1 1। इज इट क्लियर? जनरली फ्लिप फ्लॉप इज डिजाइन्ड बाय यूजिंग द नॉर गेट और नैंड गेट बिकॉज दीज आर द यूनिवर्सल गेट। ओके, when the clock pulse is 1 to activate the circuit, clock pulse जैसे अपन यहाँ अप्लाई करेंगे उसके बाद ही ये सर्किट क्या होगा एक्टिवेट होगा। is it clear? So it is required when the clock pulse should be high, clock pulse should be 1, so that means the circuit will be in working condition। अब जैसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल को एनालिसिस करें अपन, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना बेटा। फर्स्ट रो में अपन देखना है, इसके फर्स्ट रो में क्या है QT है, S है, R है और QT प्लस 1 है। ओके, इसमें क्या है QT प्रीवियस स्टेट है, प्रीवियस स्टेट वैल्यू है, S और R क्या है इनपुट वैल्यूज हैं, और QT प्लस 1 क्या है नेक्स्ट स्टेट आउटपुट है। QT प्लस 1 क्या है नेक्स्ट स्टेट आउटपुट, QT क्या है प्रीवियस आउटपुट है, S और R क्या है इनपुट टर्मिनल है। इज इट क्लियर? अब इसके एक एक रो को अपन एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट रो में क्या है QT इज इक्वल टू 0, दैट मींस प्रीवियसली उसमें जो वैल्यू है फ्लिप फ्लॉप में वो क्या है 0 है। S और R टर्मिनल पर नेक्स्ट अपन ने S और R टर्मिनल पर 0 0 अप्लाई करा, आउटपुट क्या आया 0, दैट इज द नो चेंज कंडीशन। ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं कि व्हेन S और R दोनों पर अगर अपन 0 0 अप्लाई करते हैं तो कौन सी स्टेट होगी वो नो चेंज स्टेट। नो चेंज स्टेट में क्या होगा सेम एज गिवन इन प्रीवियस स्टेट, मतलब जो उसकी प्रीवियस स्टेट में वैल्यू अवेलेबल है वही उसकी नेक्स्ट स्टेट में आएगी। अब प्रीवियस स्टेट में QT की वैल्यू क्या है 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट में QT प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी जो QT के इक्विवेलेंट है। QT के इक्विवेलेंट 0 है तो QT प्लस 1 भी क्या होगा 0 होगा। ये QT प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0 आ गई। ओके, नेक्स्ट अपन स्टेट लें, नेक्स्ट स्टेट में क्या है QT 0 है, S की वैल्यू 0 है, R की वैल्यू 1 है। कौन सी स्टेट होगी ये स्टेट रीसेट स्टेट। रीसेट स्टेट में आउटपुट क्या आएगा 0, ठीक है, तो आउटपुट क्या हो गया 0 हो गया जी 0। नेक्स्ट रो देखें, नेक्स्ट रो में QT क्या है 0 है, S की वैल्यू 1 है, रीसेट की वैल्यू 0 है। स्टेट कौन सी है जो सेट पे हाई है, तो कौन सी स्टेट है सेट स्टेट है। सेट स्टेट में आउटपुट क्या आएगा हाई आएगा, हाई की मींस दैट इज QT प्लस 1 इक्वल टू 1। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखें अपन, नेक्स्ट में QT 0 है, S पे भी 1 है, R पे भी 1 है। अगर दोनों पे 1 1 है तो कौन सी स्टेट होगी वो रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप में, SR फ्लिप फ्लॉप के केस में इनडिटरमिनेट कंडीशन। ओके, when the S and R both are connected to 1 then output state will be the indeterminate। indeterminate क्यों? क्योंकि आउटपुट स्टेट क्या कभी 0 1 0 1 0 1 में फ्लक्चुएट करती रहेगी, तो अपन उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। डिटरमाइन कब करेंगे जब या तो वो 0 आए या फिर 1 आए, है ना, और वो फ्लक्चुएट करता रहे 0 1 0 1 की फॉर्म में, तो अपन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इनडिटरमिनेट कंडीशन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट रो में क्या है QT 1 है, S पे वैल्यू 0 है, R पे वैल्यू 0 है। जब S और R बोथ पे 0 है तो कौन सी स्टेट होगी नो चेंज स्टेट होगी। नो चेंज की स्टेट में क्या होगा QT प्लस 1 जो नेक्स्ट स्टेट है वो किसके इक्विवेलेंट होगी प्रीवियस स्टेट के। अब यहाँ प्रीवियस स्टेट में QT की वैल्यू 1 दे रखी है तो QT प्लस 1 भी क्या होगा 1 होगा। सो दैट इज इक्वल टू QT प्लस 1 इक्वल टू 1, नो चेंज कंडीशन सेम एज गिवन इन द प्रीवियस स्टेट दैट इज QT। तो QT की वैल्यू 1 है तो QT प्लस 1 भी क्या हो गया 1 हो गया। क्लियर हुआ?
नेक्स्ट अपन रो देखें 1 0, QT की वैल्यू 1 है, S की वैल्यू 0 है, R की वैल्यू 1 है। कौन सी स्टेट है? ये रीसेट स्टेट है। रीसेट स्टेट में आउटपुट क्या होगा? 0 होगा, ये 0 आ गया। नेक्स्ट रो में देखें QT की वैल्यू 1 है, S की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 0 है। कौन सी स्टेट है? सेट स्टेट है। सेट स्टेट में आउटपुट क्या होगा? 1, ये 1 आ गया। नेक्स्ट कौन सी है? S की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 1 है, QT की वैल्यू 1 है। अब ये दोनों टर्मिनल S और R दोनों टर्मिनल पर 1 1 है, तो कौन सी कंडीशन है? ये रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन में QT की वैल्यू 0 हो या 1 हो, डजेंट मैटर। QT प्लस 1 क्या आएगा? इनडिटरमिनेट कंडीशन और रेस अराउंड कंडीशन और इनडिटरमिनेट कंडीशन। क्लियर हुआ? ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में जनरली इस पर क्वेश्चन पुट ऑन होता है। तो होप सो इसकी ईच एंड एवरी रो और इसके आउटपुट अपन कैसे डिफाइन कर रहे हैं वो आपके क्लियर होगा। मैं दोबारा इसको कंक्लूड कर देता हूँ। रिमेंबर इज दैट एस और आर दोनों पे अगर 0 0 है तो वो नो चेंज कंडीशन है। नो चेंज कंडीशन में QT प्लस 1 नेक्स्ट स्टेट है, वो किसके इक्विवेलेंट होगी? प्रीवियस स्टेट की। अगर प्रीवियस स्टेट में QT 0 है तो QT प्लस 1 भी 0 आएगा। प्रीवियस स्टेट में QT की वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट स्टेट में QT प्लस 1 की वैल्यू भी क्या आएगी? 1 आएगी। पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। दूसरे पार्ट में क्या है? सेट पे 0 है, रीसेट पे 1 है। कौन सा एक्टिव है? रीसेट वाला। तो कंडीशन कौन सी कहलाएगी? ये रीसेट कंडीशन। रीसेट कंडीशन का मीनिंग क्या रहेगा? आउटपुट क्या आना चाहिए? 0। तो इस केस में QT प्लस 1 क्या आएगा? 0 आएगा। अब यहाँ QT पे 0 आए चाहे 1 आए, प्रीवियस में अगर 0 है 1 है कुछ भी है, डजेंट मैटर। QT प्लस 1 या नेक्स्ट स्टेट क्या आएगा? यहाँ पे 0 ही आएगा। क्लियर हुआ? थर्ड अपन पार्ट में गए। थर्ड पार्ट में क्या है? सेट पे 1 है, रीसेट पे 0 है। सेट पे 1 है, सेट पे हाई टर्मिनल है, तो कौन सी स्टेट होगी? ये सेट स्टेट होगी। सेट स्टेट में आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा, ऑलवेज 1 आएगा। ठीक है। अब चाहे QT जो प्रीवियस स्टेट में 0 था 1 था, उससे कोई मैटर नहीं है। QT प्लस 1 क्या आएगा? इस केस में 1 ही आएगा। क्लियर हुई? लास्ट वाली जो स्टेट क्या है कि एस पे भी 1 अप्लाई कर दिया, रीसेट पे भी अपन ने 1 अप्लाई कर दिया, तो कौन सी कंडीशन होगी? ये रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन में QT प्लस 1 क्या है? कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट करता रहेगा, कभी 0 कभी 1 कभी 0 कभी 1। तो आउटपुट स्टेट अपन डिसाइड नहीं कर सकते। आउटपुट स्टेट डिसाइड नहीं कर सकते उस केस में दैट इज नोन एज द इनडिटरमिनेट कंडीशन। ये चार के रेस्पेक्टिव अपने को एनालिसिस करके ये टेबल अपन ने डिजाइन कर। ठीक है। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन क्या पुट ऑन होता है कि टू डिफाइन और डिजाइन द और डेराइव द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बाय यूज फॉर द एस क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप। derive the characteristics equation for the clocked SR flip flop। अब the characteristics equation अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? by using this characteristics table। इस characteristics table से अपन क्या derive करेंगे? characteristics equation। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपन बेसिकली कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? बाय यूजिंग के मैप। के मैप से अपन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन या एक्सप्रेशन उसका ऑब्टेन कर सकते हैं। ये अपन प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, कर चुके हैं चीजों। तो इस वाली का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में एसओपी फॉर्म देखनी है। एसओपी फॉर्म में एक्टिव लॉजिक कौन सा रहेगा? 1। अब 1 1 कहाँ प्रेजेंट है? इस वाले केस में, ये वाली सेट स्टेट में 1 प्रेजेंट है। ठीक है, इस वाली सेट स्टेट में 1 प्रेजेंट है, और ये नो चेंज वाली कंडीशन में 1 प्रेजेंट है। तो इस पूरी टेबल में 1 1 कहाँ प्रेजेंट है? 3 जगह 1 प्रेजेंट है। 2 तो सेट स्टेट है और एक नो चेंज स्टेट है। तो फर्स्ट 1 कहाँ प्रेजेंट है? जहाँ QT की वैल्यू 0 है, S की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू 0 है। तो ये अपन के मैप बनाएंगे। के मैप में अपन QT की वैल्यू 0 है, ये वाला आया, S की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 0 है। तो फर्स्ट 1 ये आ गया यहाँ पे, ये रहा फर्स्ट 1। ओके। सेकंड 1 कहाँ पे है? नो चेंज में, जहाँ पे QT की वैल्यू 1 है, S की वैल्यू 0 है, R की वैल्यू 0 है। तो QT की वैल्यू 1 है, S की वैल्यू 0 है, R की वैल्यू 0। तो सेकंड ये 1 आ गया यहाँ पे, सेकंड 1। ओके। थर्ड 1 कहाँ दे रखा है? यहाँ QT की वैल्यू 1 है, S की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 0 है, ये वाला थर्ड 1। तो यहाँ पे क्या आएगा? QT की वैल्यू 1 है, S की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 0 है। तो ये थर्ड 1 आ गया, ये थर्ड 1। ठीक है। अब इनडिटरमिनेट कंडीशन कहाँ पे है? जहाँ QT की वैल्यू 0 है, S की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 1 है। तो यहाँ QT की वैल्यू 0 है, S की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 1। तो इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट को अपन क्या कहते हैं? डोंट केयर कंडीशन, है ना। डोंट केयर कंडीशन आर यूजिंग टू सॉल्व द ग्रुप
or making the group in K-map. So this is the don't care condition or the indeterminate condition, first indeterminate condition. सेकेंड इंडेटरमिनेट कंडीशन कब है? जब QT पे 1 है, S पे 1 है और R पे 1 है। तो QT की वैल्यू 1 है, S की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 1, तो ये सेकंड डोंट इंडेटरमिनेट कंडीशन है और डोंट केयर कंडीशन है। ठीक है, डोंट केयर कंडीशन अपन ने पुट ऑन कर दी। अब जैसे वैल्यू पुट कर दी एसओपी फॉर्म के लिए, तीनों 1 प्रेजेंट कर दिए, प्लेस कर दिए, दोनों इंडिटरमिनेट और डोंट केयर कंडीशन पुट ऑन कर दी। नेक्स्ट इसमें अप्रोच क्या रहती है? टू मेकिंग द ग्रुप। नेक्स्ट अप्रोच क्या रहेगी कि इसका ग्रुप बनाया जाए। तो ग्रुप कैसे बना सकते हैं? ये 4 का ग्रुप बना, 1 2 3 4, ये 4 का ग्रुप बन गया। ठीक है, अब ये एक 1 रह गया, तो इसको इसके 1 के साथ और इसके 1 के साथ ले लो कॉर्नर में, कॉर्नर ये 1 और ये कॉर्नर ये वाला 1। ठीक है, तो ये 2 का ग्रुप बन गया। तो अल्टीमेटली इस के मैप में क्या बने? एक तो 4 का ग्रुप बना और एक 2 का ग्रुप बना, कॉर्नर कॉर्नर वाला 2 का ग्रुप। तो ये 2 का ग्रुप बना और एक 4 का ग्रुप बना। अब जैसे अपन 4 वाले ग्रुप को पहले कंसीडर करें, तो 4 वाले ग्रुप में अपन हॉरिजॉन्टल देखें तो कौन कौन सी रो आ रही है? एक तो Q2 = 0 वाली रो आ रही है, दूसरी Q2 = 1 वाली रो आ रही है। अब Q2 की वैल्यू एक बार तो 0 और एक Q2 की वैल्यू एक बार 1 है, तो कोई कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है। अब वर्टिकल देखें तो वर्टिकल में थर्ड कॉलम है और फोर्थ कॉलम है। थर्ड कॉलम में S की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 1 है। फोर्थ कॉलम में S की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 0 है। तो कॉमन क्या आया? S की वैल्यू 1। तो अल्टीमेटली कॉमन क्या निकला इसमें? S = 1 और S = 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? S से। ये आ गया फाइनल एक्सप्रेशन S। ठीक है, अब 2 वाले ग्रुप को देखें, कॉर्नर वाले ग्रुप को, तो एक ये 1 का ग्रुप है, एक ये 1 का ग्रुप है। हॉरिजॉन्टल अपन देखें तो Q2 = 1 वाला सेकंड वाली रो है, वो कॉमन आ रही है इसके साथ, तो Q2 = 1 है तो QT रख दिया अपन ने। अब वर्टिकली देखें तो वर्टिकल में फर्स्ट कॉलम है और फोर्थ कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में S की वैल्यू 0 है, R की वैल्यू 0 है। फोर्थ कॉलम में S की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 0 है। कॉमन क्या निकल के आया? R की वैल्यू 0। R की वैल्यू 0 है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? R बार से, तो R बार into QT। So the final expression QT + 1 = S + R bar QT. That is the characteristic equation. तो कई बार इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन जनरली आता है कि टू डेराइव द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर SR फ्लिप फ्लॉप। तो ये अपने को उसमें लिखना है, जिसमें अपने को ये सर्किट डायग्राम बनाना है क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप का, ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनानी है। कैरेक्टरिस्टिक टेबल के बाद अपने को के मैप बनाना है और के मैप के बाद ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग के बाद ये फाइनलाइज इक्वेशन निकालनी है। फाइनलाइज इक्वेशन क्या निकली? QT + 1 = S + R bar QT, वेयर QT + 1 क्या है? फाइनल आउटपुट है। QT क्या है? प्रीवियस आउटपुट है। R और S क्या है? यहाँ पे इनपुट है। इज इट क्लियर? ओके, दैट इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब दूसरी एक और इक्वेशन इसमें अपन डिफाइन करते हैं कि S × R की वैल्यू 0। अब ये S × R की वैल्यू 0 ये कैसे आया? फ्रॉम ट्रुथ टेबल एक्सेप्ट इंडिटरमिनेट कंडीशन फॉर ऑल द केसेस S × R = 0। S × R की वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो 0, तो इंडिटरमिनेट कंडीशन को छोड़ दें, बाकी सबके लिए S × R को करोगे तो 0 आएगा। जैसे 0 × 0 करा तो 0 आएगा, 0 × 1 करेंगे तो 0 आएगा, 1 × 0 करेंगे तब भी 0 आएगा। 1 × 1 कर रहे हैं, ये इंडिटरमिनेट, तो इसको छोड़ दो, इस कंडीशन को, एक्सेप्ट इंडिटरमिनेट कंडीशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिया अपन ने, 0 × 0 करेंगे 0 आएगा, 0 × 1 करोगे तो भी 0 आएगा, 1 × 0 करेंगे तब भी 0 आएगा, और इंडिटरमिनेट कंडीशन को छोड़ दो। तो ये कंक्लूजन निकला कि पूरी कैरेक्टरिस्टिक टेबल में एक्सेप्ट इंडिटरमिनेट कंडीशन S और R को मल्टीप्लाई करोगे तो आउटपुट क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो दैट इज आल्सो नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर द SR flip flop, which is derived by using the characteristic table. Is it clear? तो अल्टीमेटली अपन ने क्या करा? क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप लिया, कैरेक्टरिस्टिक टेबल डेराइव करी, टेबल से अपन ने के मैप लिया, के मैप के रेस्पेक्टिव अपन ने ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डेराइव करी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जनरली इस पे क्वेश्चन पुट ऑन होता है। ठीक है, तो आज अपन केवल SR फ्लिप फ्लॉप ही पढ़ते हैं। तो अभी तक मैंने जो आपको स्टडी करा हुआ है उसमें SR फ्लिप फ्लॉप डिजाइन बाय यूजिंग द नॉर गेट फर्स्टली अपन ने स्टडी करा, उसके बाद अपन ने करा SR फ्लिप फ्लॉप डिजाइन बाय यूजिंग द नैंड गेट। ठीक है, थर्ड अपन ने एनालिसिस करा कि SR फ्लिप फ्लॉप डिजाइन बाय इंप्लीमेंटेशन ऑफ द क्लॉक पल्स अप्लाई करें, उसके इसमें अपने को SR फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करना है। डिजाइन करने के बाद अपन ने क्या करा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल है वो डेराइव करी, कैरेक्टरिस्टिक टेबल डेराइव करी।
टेबल डिराइव करने के बाद अपन ने क्या बनाया, उसका के मैप से उसके एक्सप्रेशन फाइंड आउट करे, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करके डिराइव क्या करा अपन ने इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जनरली एग्जाम में पुट ऑन होती है। तो आज अपन केवल एसआर फ्लिप फ्लॉप ही अपन पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन डिले फ्लिप फ्लॉप की स्टडी करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। ओके, इस क्लास के रेस्पेक्टिव कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो वो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो इस क्लास में कुछ समझ में। फ्लिप फ्लॉप यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है, और डी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, है ना, फ्लिप फ्लॉप वाली। तो होप सो ये आप धीरे धीरे, मैं इसको पढ़ा भी बहुत धीरे धीरे स्लो में रहा हूँ, जिससे आपके सारी चीजें कंसेप्ट सारे क्लियर रहें, कोई डाउट्स नहीं रहे। और बाकी होप सो आपने जो पीडीएफ मैंने बताए हुए हैं, बुक्स के पीडीएफ आपने डाउनलोड कर लिए होंगे, जो बुक्स के पीडीएफ है उनकी स्टडी करो। ये वीडियो लेक्चर जो मैं ले रहा हूँ, इसको मैं कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड करके वहां से डायरेक्टली आप सुन सकते हो। और इसके रिलीवेंट पीपीटीज है, वो पीपीटी मैंने गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दी है, आप उनकी पीपीटी को भी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, इनको पढ़ो, स्टडी करो, और कोई डाउट्स आता है तो मुझसे डिस्कशन करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।